So hello my young ones, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start our book Rhymes and Geet Part C of class UKG by Magic Mind, a book of Galaxy publication. So let's start our rhyme, and title of our rhyme is 1 2 3 4 5. तो चलिए क्या पढ़ेंगे हम इस rhyme में? As you can see in the picture, we will study about a fish. So start the rhyme with me. 1 2 3 4 5. Once I caught a fish alive. 6 7 8 9 10. Then I let go again. Why did you let it go? Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. So it's a very beautiful poem. We will repeat this once again. 1 2 3 4 5. Once I caught a fish alive. 6 7 8 9 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. So kids, you also recite this poem at home. So move forward towards our activity related to this poem. So हमने एक पोएम पढ़ी, बहुत ही प्यारी सी पोएम 1 2 3 4 5 जो कि फिश से रिलेटेड थी। और चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं बहुत अच्छी सी जो कि उस पोएम से रिलेटेड है। चलिए आप करेंगे मेरे साथ। मैच द फिश टू देयर शैडोज। सो माय डियर किड्स, यहाँ पे हमें कुछ फिशेस की इमेजेस दी गई हैं और इस साइड हमें सेम फिश की शेडो दी गई है। देखो आपको दिख रही है ना शेडो। चलिए हम क्या करेंगे, हम इस फिश को उसकी शेडो से मैच करेंगे। ठीक, चलिए ये वाली फिश है, इसकी शेडो कहाँ है? चलिए प्यार से ढूंढेंगे। सो स्टार्ट फाइंडिंग द शेडो। सो वेयर इज द शेडो? लुक, हियर इज द शेडो ऑफ दिस फिश। यहाँ पे है इसकी शेडो, हमने उसे पकड़ लिया है। ओके, सो आवर नेक्स्ट फिश इज, आप देख रहे हैं ना ये वाली फिश, ओह स्कैरी। सो कहाँ पे है इसकी शेडो? कहाँ पे है, कहाँ पे है? चलिए ढूंढते हैं कहाँ पे है। सो लुक, हियर इज द शेडो ऑफ दिस फिश। चलिए इसको इसकी शेडो से मैच कर देते हैं। नाउ वेयर इज द शेडो ऑफ दिस फिश? यस, मिल गई हमको, यहाँ पे है इसकी शेडो। चलिए दिस इज ऑक्टोपस। वेयर इज द शेडो ऑफ ऑक्टोपस? हियर इज द शेडो ऑफ ऑक्टोपस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी इन राइम्स को रिसाइट करिए और एक्सरसाइज को करिए। नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट राइम, एंड द टाइटल ऑफ माय राइम इज वॉश योर हैंड्स। सो व्हाट इज द टाइटल किड्स? यस, वॉश योर हैंड्स। तो हम सब अपने हैंड्स वॉश करते हैं ना। So today we will recite a poem relating to washing our hands. Start with me. Wash, wash, wash your hands. Play our handy game. Rub and scrub, rub and scrub. Jumps to down the drain. Wash, wash, wash your hands. Play our handy game. Rub and scrub, rub and scrub. Dirt goes down the drain. Oh, very nice. So, you also recite this poem at home. It is a very, very, very good poem. So, now we will move forward towards our next poem. So, kids, what is the title of the poem? क्या है हमारी टाइटल पोएम का? Yes. What is the title of our poem? Yes, yes, the title is Donkey, Donkey, Old and Grey. Donkey, Donkey, Old and Grey. So, start with me reciting the poem. Donkey, donkey, old and grey, open your mouth and gently bray. Lift your ears and blow your horn to wake up the world, the sleepy morn. तो क्या कह रहे हैं कि डंकी डंकी, ओल्ड एंड ग्रे डंकी, क्या करो? ओपन योर माउथ एंड जेंटली ब्रे। क्या करता है? ब्रे करता है डोंकी। एंड लिफ्ट योर ईयर्स, अपने कानों को उठा लो। एंड ब्लो योर हॉर्न्स, अपने हॉर्न्स को क्या करो? ब्लो करो। एंड वेक अप द वर्ल्ड, सबको उठा दो इस स्लीपी मॉर्निंग से, जो सब सो रहे हैं ना उनको उठा दो। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। नाउ यू ऑल्सो रिसाइट दिस पोएम एट होम।
Now we will play an activity related to this poem. So you want to do this activity with me? Okay, start the activity. Color the picture. तो हमने अभी पढ़ा हमारी जो पोयम थी वो किससे रिलेटेड थी? Yes, डंकी से रिलेटेड थी। और अब हम क्या करेंगे? अब हम कलर करेंगे इस प्यारे से डंकी को। ओके, तो मैं थोड़ा सा कलर फिल करूंगी और रिमेनिंग कलर आप फिल करिए अपनी बुक में। चलिए इसको फिल करते हैं। सो लुक किड्स, मेरा डंकी तो अच्छा लग रहा है कलर करने के बाद। नाउ यू ऑल्सो ट्राई टू कलर द डंकी एट होम। So move forward towards our next rhyme, and the title of the rhyme is Little Tommy Tucker. Little Tommy Tucker. Little Tommy Tucker sings for his supper. What shall we give him? Brown bread and butter. How shall he cut it without a knife? So again I am repeating my words. Little Tommy Tucker sings for his supper. What shall we give him? Brown bread and butter. How shall he cut it without a knife? So, very nice poem. You also recite it at home. Now move forward towards our next rhyme. So yes, the title of our next rhyme is Diddle Diddle Dumpling. Diddle Diddle Dumpling. My son John went to his bed with his trousers on, one shoe off and one shoe on. Diddle diddle dumpling, my son John. So once again I will recite this rhyme for you. Diddle diddle dumpling, my son John went to the bed with his trousers on, one shoe off and one shoe on. Diddle diddle dumpling, my son John. So very interesting poem, kids. You will also learn this poem and recite this poem at home. Now move forward towards our next rhyme. So we will do an exercise related to our poem. So what is the exercise? Pick the healthy food. Yes, kids. Who eat healthy food? I eat healthy food. Now you will tell me which food is healthy in the given foods. अब आप हमें ये बताएंगे कि इसमें से कौन सा फूड हेल्दी फूड है। चलिए हम उसको टिक करेंगे। So tell me, tomato is a healthy food? Yes, tomato is very healthy food. It is very good for our health. बहुत अच्छा है ये हमारी हेल्थ के लिए। Yes, it is healthy food. चलिए next is sandwich. Is sandwich healthy food? No. It contains lot of sauces, lot of breads, which is not good for our health. Don't eat sandwich. Okay, sandwich नहीं खाना, उसमें bread होती है, उसमें बहुत सारी sauces होती हैं, बहुत सारा चीज होता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है. So it is not a healthy food. Egg is a healthy food? Yes, egg is very healthy food. It is protein rich food. आप सब खाएं egg. It is very healthy. Apple is a healthy food? Yes, apple is a very healthy food. Brinjal is healthy food? Yes, it is vegetable and it is very healthy vegetable. And grapes is healthy food? Yes, grapes are very healthy food. And you also eat these foods if you want to become healthy. Okay kids, move towards our next rhyme. So the title of my rhyme is Cobbler, Cobbler. Start with me. Cobbler, cobbler, mend my shoes, get it ready by 2:30. Stitch it up and stitch it down, and then I will walk around the town. So once again I am repeating the rhyme for you. Cobbler, cobbler, mend my shoes, get it ready by 2:30. Stitch it up and stitch it down, and then I will walk around the town. So very nice poem. You also recite this poem at home. Now move forward towards our next rhyme. So the title of our rhyme is Tick Tock, Tick Tock. तो rhyme is related about किस चीज से related है ये rhyme? ये rhyme related है हमारी watch से जो कि हम दिखाती है, हमें क्या दिखाती है? Yes, हमें समय बताती है. तो चलिए recite करते हैं मेरे साथ इस rhyme को. Tick tock, tick tock. Tick tock, merrily sings the clock. It's our time for work, so it sings throughout the day. Tick tock, merrily sings the clock. So once again I am repeating my words.
tick tock, merrily sings the song. It's a time to work, so it sings throughout the day. Tick tock, merrily sings the song. Merrily sings the clock. So, you also recite this poem at home and learn this poem. Thank you. So now move forward towards an interesting activity related to our poem. चलिए, हमने पोएम पढ़ी क्लॉक से रिलेटेड. क्लॉक क्या करती है? हमें समय बताती है. हमें बताती है कि चलिए काम करने का समय हो गया है. तो चलिए, हमें यहाँ पे एक प्यारी सी क्लॉक दी गई है और हमें क्या करना है? उसको कलर करना है. कलर द पिक्चर. चलिए, आप करेंगे कलर मेरे साथ. Start the coloring. So look, our clock is ready with beautiful colors. So you also do coloring in this clock. Let's move forward to our next rhyme. At the zoo. तो कौन कौन zoo गया है बच्चों? चलिए, जू में बहुत मजा आता है. हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखते हैं वहां पे. तो चलिए, आज हम फिर एक जू की तरफ चलते हैं क्योंकि हमारी राइम का नाम है एट द जू. Rabbits, rabbits, 1, 2, 3. Will you come and play with me? Camels, camel, 4, 5, 6. Why don't you have hump like this? Monkeys, monkeys, 7, 8, 9. Will you teach me how to climb? When I have counted up to 10, then elephant say, now start again. Chali, I'll repeat this rhyme once again for you. Okay? You enjoy this rhyme? Rabbits, rabbits, 1, 2, 3. Will you come and play with me? Camels, camels, 4, 5, 6. Why don't you have hump like this? Monkeys, monkeys, 7, 8, 9. Will you teach me how to climb? When I have counted up to 10, elephant says once again. So, you also recite this rhyme at home and enjoy the zoo. Now, let's move forward towards our next rhyme. So, title of our rhyme is Monkey. Yes, monkey. So, start rhyme with me. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Monkey on the mango tree. Dropping mangoes all for free. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, once again I will recite this rhyme for you. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Monkeys on the mango tree. Dropping mangoes all for free. 1, 2, 3. 1, 2, 3. तो क्या कर रहा है मैंकी? ड्रॉप कर रहा है मैंगोज मंकी ट्री से. So you also recite this rhyme and learn at home. So now move forward towards our next rhyme. So now we will do some activity relating to rhymes. So now we have to match the animals to their homes. हम सबको पता है कि एनिमल्स के भी छोटे छोटे होम्स होते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं. अगर वो नहीं रहेंगे तो वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, कैसे बचेंगे ठंड से, गर्मी से, धूप से, बारिश से. तो चलिए, आज हम इन एनिमल्स को उनके होम्स में छोड़ के आएंगे. सो स्टार्ट द एक्टिविटी विद मी. चलिए, बर्ड कहाँ रहती है? आपने देखा है बर्ड्स कहाँ रहती है? आप सबने देखा होगा ट्रीज में छोटे छोटे नेस्ट होते हैं और वो किसके होते हैं? यस, वो बर्ड्स के होते हैं. तो चलिए हम यहाँ ढूंढते हैं कहाँ है नेस्ट. यस, यहाँ है नेस्ट जिसमें हमारी बर्ड रहती है. चलिए, कैट कहाँ रहती है? बताइए जल्दी. सो हनी बी कहाँ रहती है? हनी बी का होम यहाँ पे है, हाइव. ओके. काट कहाँ रहती है? कैट रहती है यहाँ पे. चलिए, कैटरपिलर कहाँ रहता है? मोस्टली कैटरपिलर हमें मिलता है कैबेज में, वेजीज में. ओके. और ये हमारे डॉग का होम हो गया. चलिए, आप भी इस एक्टिविटी को करेंगे अपने घर पे और एंजॉय करेंगे. चलिए, मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट राइम. सो किड्स, व्हाट इज द टाइटल ऑफ आवर नेक्स्ट राइम? द टाइटल इज एरोप्लेन. एरोप्लेन. कौन बैठा है एरोप्लेन में? आई होप आप सब ने एरोप्लेन में बैठ के देखा होगा, बहुत ही मजा आता है. चलिए, आज हम एंजॉय करेंगे इस एरोप्लेन राइड को अपनी पोएम से. सो स्टार्ट राइम विद मी. एरोप्लेन, एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाई सो हाई? ओवर द सी, ओवर द माउंटेन्स, एरोप्लेन, एरोप्लेन, कांट यू टेक मी?
क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मैंने एरोप्लेन देखा है, बहुत ऊंचा उड़ता है और कैसा होता है, कभी वो सी के ऊपर से जाता है, कभी माउंटेन के ऊपर से जाता है। और वो बोल रहा है एरोप्लेन क्या तुम मुझे नहीं ले जा सकते? हाँ जी, तो चलिए आप भी इस पोएम को रिसाइट करिए, लर्न करिए। थैंक यू। सो द टाइटल ऑफ आवर नेक्स्ट राइम इज रेनबो। आई होप आप सब ने रेनबो देखा होगा। इट इज वेरी कलरफुल, लॉट ऑफ कलर्स आर देयर इन द रेनबो एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द स्काई। बहुत ही प्यारा लगता है रेनबो। तो चलिए हम भी आज एक रेनबो देखेंगे अपनी राइम में। सो लेट्स स्टार्ट रिसाइटिंग दिस राइम विद मी। There is a rainbow in the sky. Do you know how it came by? Drops of water through the sunlight gave the sky the pretty sight. 7 colors can be seen, red, yellow and a lovely green. Violet, indigo and blue. There is a orange in it too. So, क्या बता रहे हैं कि रेनबो होता है स्काई में और थोड़ा सा जो है सनलाइट होता है और थोड़ी सी रेनिंग जब होती है तब हमें इस रेनबो को देखने को मिलता है। बहुत सारे कलर्स लाइक येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, इंडिगो हमें अपने रेनबो में दिख जाते हैं। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पोएम, लर्न दिस पोएम, रिसाइट दिस पोएम एट होम। नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट राइम। तो वी हैव टू कलर दिस रेनबो। सो स्टार्ट कलरिंग विद मी। So look kids, our rainbow is ready. You also color this rainbow and enjoy this activity. Now come forward towards our next rhyme. And the title of our rhyme is Hot Cross Buns. So, Hot Cross Buns. तो buns के बारे में बात हो रही है इस rhyme में। चलिए start करते हैं ये rhyme. Recite with me. Hot cross buns, hot cross buns. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. तो वो क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है hot cross buns और वो कह रहा है कि अगर डॉटर नहीं है तो सन के लिए ले लो, बट परचेज कर लो hot cross buns. So you also recite this poem and learn this poem. Now move forward to our next rhyme. Bird. तो टाइटल ऑफ माई राइम इज बर्ड। किस किसने देखी है बर्ड? हाँ, हम सब ने देखी है मॉर्निंग में या फिर हमने इवनिंग में भी देखी है जब वो अपने घर जाती है ना। तो चलिए अब हम आज एक बर्ड से मिलेंगे हमारी राइम में। सो स्टार्ट रिसाइटिंग विद मी। इफ आई वर अ बर्ड आई डिड सिंग अ सॉन्ग एंड फ्लाई अबाउट द होल डे लॉन्ग एंड व्हेन द नाइट केम गो टू द रेस्ट up in my cozy little nest. So once again I am reciting for you. If I were a bird, I did sing a song and fly about the whole day long. And when the night came, go to rest up in my cozy little nest. So you also recite this poem and learn this poem at home. Thank you. So now kids, we will do the activity relating to bird. Match the birds with their baby. तो यहाँ पे हमें birds दी गई है और यहाँ हमें babies दिए गए हैं और हमें क्या करना है? उनको birds को उनके baby से मिलाना है। चलिए आप help करेंगे मेरी? चलिए bird का baby कहाँ पे है? चलिए ढूंढिए। यहाँ पे है bird का baby। hen का baby कहाँ होता है? hen का baby यहाँ है। chicken, duck का baby यहाँ है और parrot का baby यहाँ है। So हमने mothers को उनके baby से मिला दिया। So now move forward toward our new rhyme, bird house. तो अभी हमने एक bird के बारे में पढ़ा लास्ट टाइम में, अब हम पढ़ेंगे bird house के बारे में, मतलब nest के बारे में। So start reciting this rhyme with me. Little bird, look at me. I have a bird house. Oh, come and see. Little boy, under the tree. I like this house. Give it to me. So I will recite this poem once again for you. Little bird, look at me. I have a bird house. Oh, come and see. Little boy, under the tree. I like this house. Give it to me. You also recite this poem and learn this poem at home. Thank you. So, my dear kids, now it's a story time. And the title of our story is The Greedy Lion.
यस, सही सुना आपने, द ग्रीडी लॉयन। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। और लॉयन कौन होता है? शेर। द ग्रीडी लायन, एक लालची शेर की कहानी सुनेंगे आज। सो नाउ वी विल रीड द स्टोरी। इट्स अ स्टोरी टाइम। चलिए हमारे साथ स्टोरी पढ़ेंगे आप। द ग्रीडी लॉयन, एक लालची शेर था। तो चलिए पढ़ते हैं उस लालची शेर की स्टोरी। On a hot day, a lion in the forest started feeling hungry. एक लॉयन था और उसको भूख लगी थी, बहुत ही हंग्री था वो। He was starting to hunt for his food. वो अपने खाने की तलाश में निकल गया, शिकार करने निकल गया। जब शेर को भूख लगती है ना, तो वो क्या करता है? वो जंगल में ढूंढता है कि उसे कोई मिल जाए जिसे वो खा के अपना पेट, अपनी टमी फुल कर ले। चलिए, when he found a hare roaming around alone, और उसे एक छोटा सा खरगोश मिला जो अकेला जंगल में घूम रहा था। Instead of catching the hare, the lion let it go. उसने क्या करा? अरे ये छोटा सा खरगोश है, इससे मेरा पेट क्या भरेगा, इसको जाने देता हूँ। ठीक, a small hare such as thing can't satisfy my hunger. उसने कहा ये छोटा सा खरगोश से मेरा पेट क्या भरेगा, मेरी भूख नहीं मिटेगी, इसको छोड़ देता हूँ। He sat and scoffed. Then a beautiful deer passed by and he decided to take his chances. तो वहां से एक बहुत ही सुंदर डियर था, वो गया और शेर ने सोचा इसको पकड़ता हूँ। He ran and ran behind the deer. वो भागता चला गया डियर के पीछे। But since he was weak because of hunger, क्योंकि वो बहुत ही वीक हो चुका था भूख के मारे, तो वो भाग नहीं पा रहा था। He struggled to keep up with the deer's speed. वो सोच रहा था कि मैं डियर की तरह तेज भाग लूं, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। Tired and defeated, वो बहुत थक गया, बहुत ही हार गया। The lion went back to look for the hare. और वो दोबारा गया कि चलो उस खरगोश को ही देख लेता हूँ। To fill up his stomach for time being. थोड़े समय के लिए तो पेट भरा रहेगा। But it was gone. पर क्या हुआ? वो खरगोश भी वहां से चला गया। So the lion was sad and remained hungry for a long time. अब वो बेचारा भूखा ही रह गया, क्योंकि उसने क्या किया? उसने लालच किया। हाँ बच्चों, लालच बुरी बला है, तो लालच नहीं करना। जो आपको मिल रहा है आपको वही रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि और ज्यादा नहीं। लायन ने देखिए क्या करा, लालच करा ना, तो उसके हाथ कुछ नहीं आया। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी, ग्रीड इज नेवर अ गुड थिंग। लालच बुरी बला है। चलिए, आई होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया। थैंक यू। सो चलो बच्चों, आ जाते हैं हमारी कविता पे, और हमारी कविता का शीर्षक है गाय माता। गाय हमारी माता है, सबको दूध पिलाती है, घास फूस वो खाती है, फिर भी बल बढ़ाती है, सींग नहीं वो चलाती है, प्यार से पास बुलाती है। तो सबने देखी है ना गाय, तो वही है गाय जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए एक बात और मैं इस कविता को आपके लिए दोहराऊंगी। गाय हमारी माता है, सबको दूध पिलाती है, घास फूस वो खाती है, फिर भी बल बढ़ाती है, सींग नहीं वो चलाती है, प्यार से पास बुलाती है। तो किस किसने देखी है गाय? आज सब गाय को देखेंगे और इस कविता को दोहराएंगे और याद करेंगे। चलिए चलते हैं हमारी अगली कविता पे। गोल गोल आलू, किसने खाया है आलू? हाँ, सब बच्चे खाते हैं, सबको बहुत पसंद होता है। फ्रेंच फ्राइज भी खाते हैं, वो भी आलू का ही बनता है, खाते हैं ना आप? तो चलिए, हमारी कविता का शीर्षक है गोल गोल आलू। सो पढ़ेंगे आप इस कविता को मेरे साथ? चलिए मेरे साथ दोहराएंगे इस कविता को। गोल गोल सा दिखता हूँ मैं, 12 महीने बिकता हूँ, हर सब्जी का स्वाद बढ़ाता हूँ, जब मैं सबके घर पर जाता लोग चाव से खाते हैं, मुझसे चिप्स बनाते हैं। बताया ना मैंने, चिप्स फ्रेंच फ्राइज सब खाते हैं, तो वो आलू के ही बनते हैं। चलिए एक बार फिर गाएंगे इस कविता को मेरे साथ। गोल गोल सा दिखता हूँ मैं, 12 महीने बिकता हूँ, हर सब्जी का स्वाद बढ़ाता हूँ, जब मैं सबके घर पर जाता लोग चाव से खाते हैं, मुझसे चिप्स बनाते हैं। तो चलिए आप भी बनवाइए मम्मी से आज आलू के चिप्स। चलिए तो चलते हैं हमारी दूसरी कविता की ओर। हमारी कविता का शीर्षक है सवेरा। तो कौन कौन जल्दी उठता है सुबह? अच्छी आदत है बच्चों, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सवेरा बहुत ही प्यारा होता है।
चलिए तो पढ़ते हैं आज इस कविता को, मेरे साथ दोहराएंगे। मेरी कविता का शीर्षक है सवेरा। हुआ सवेरा आंखें खोलो, उठो लाल अब मुंह धो लो। सूरज निकला चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली। आसमान में छाई लाली, हवा बही है सुख देने वाली। इतना सुंदर समय न खो मेरे प्यारे, अब मत सो। तो सोना नहीं है, सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं, हमारा आसमान लाल रहता है, चिड़िया चहचहाती हैं और क्या होता है, फूल खिलते हैं। तो बच्चों सुबह जल्दी उठोगे सवेरा देखने के लिए? हाँ जी, तो इसे कविता को आप याद करेंगे। चलते हैं अपनी अगली कविता पर। तो चलिए अपनी कविताओं से मिलती जुलती कुछ अभ्यास हमें दिया गया है और अभ्यास को पूरा करते हैं। चित्रों में रंग भरिए। हमने आलू के ऊपर कविता पढ़ी और देखिए हमें कुछ सब्जियां यहाँ पे दी गई हैं, हमें उसमें रंग करना है। तो चलिए आलू में मैं रंग करूंगी और बाकी चित्रों में आप रंग करेंगे। चलिए तो देखो बच्चों, हमारा आलू तो तैयार है। तो आप भी इन सब चित्रों में रंग भरिए और इस अभ्यास को एंजॉय करिए। तो आ जाते हैं हमारी अगली कविता की तरफ और हमारी अगली कविता का शीर्षक है समय की कीमत। बहुत ही मूल्यवान होता है समय बच्चों, अगर समय हाथ से निकल गया तो वो समय वापस नहीं आएगा। तो इसलिए आपको समय की कीमत समझनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए हम अपनी कविता को आज पढ़ेंगे। चलिए आप स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। मेरी कविता का शीर्षक है समय की कीमत। चींटी करती दिन भर काम, कभी नहीं करती आराम। इधर उधर घूमा करती, कभी नहीं मेहनत से डरती। बेकार समय ना कभी गवाती, समय की कीमत सबको बताती। तो चींटी क्या करती है, पूरे दिन काम करती है, एक एक दाना ले जाती है और अपना भोजन इकट्ठा करती है। 1 मिनट के लिए भी वो नहीं बैठती। तो चींटी हमें बताती है कि अगर समय निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा, समय की कीमत समझो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी समय की कीमत को समझेंगे, इस कविता को याद करेंगे और दोहराएंगे घर पे। चलिए चलते हैं हमारी अगली कविता की तरफ। हमारी अगली कविता का शीर्षक है सर्कस। कौन कौन गया है बच्चों सर्कस, जल्दी से बताओ। मैं तो गई हूँ भाई। चलिए आज आपको ले जाएंगे एक सर्कस में। चलो शुरू करते हैं अपनी कविता। हमारी कविता का शीर्षक है सर्कस। आज शहर में सर्कस आया, भालू जी ने नाच दिखाया। हाथी के ऊपर एक बंदर, सारे बच्चे बैठे अंदर। जोकर ऐसा खेल दिखाता, सब बच्चों को खूब हंसाता। तो आप भी जाएंगे सर्कस देखने? आप भी बोलिए अपने मम्मी पापा से, आपको भी सर्कस दिखा के लाएंगे। और पर उससे पहले आप इस कविता को याद करेंगे, दोहराएंगे। धन्यवाद। चलते हैं अपनी अगली कविता की तरफ। तो चलिए एक अभ्यास हमें दिया गया है, हमें क्या करना है, हमें जितने भी जानवर यहाँ हैं उनको उनकी छाया से मिलाना है। तो चलिए करेंगे मेरे साथ इस अभ्यास को आप। तो देखिए हाथी जी की छाया कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ढूंढते हैं। यहाँ है हाथी जी की छाया। चलिए ले आते हैं हाथी जी की छाया, यहाँ पे है। एक प्यारे से पपी की छाया कहाँ पे है, यहाँ पे है। प्यारी सी बिल्ली की छाया यहाँ पे है, इसको मिला दो इससे। बंदर की छाया यहाँ पे है और हिरन की छाया यहाँ पे। तो चलिए आप भी अपनी किताब में इस अभ्यास को पूरा करिए। आइए आते हैं अपनी अगली कविता की ओर। तो चलो बच्चों, हमारी कविता का शीर्षक है इतने मजे हमारे होते। तो कभी आपने सोचा है अगर पेड़ चलते तो क्या होता? चलिए आज पढ़ते हैं अपनी कविता में कि अगर पेड़ चलते तो क्या होता। चलिए मेरे साथ शुरू करेंगे कविता को। मेरी कविता का शीर्षक है इतने मजे हमारे होते। इतने मजे हमारे होते अगर पेड़ भी चलते होते। बांध गले में उनके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। अगर भूख लगती हमको तो तोड़ मधुर फल उनके खाते। तो क्या होता, अगर पेड़ चलते तो हम उनको अपने साथ साथ रखते और जहाँ हमें भूख लगती वहाँ हम फल तोड़ के खा लेते। तो आप भी सोचो अगर पेड़ चलते तो क्या होता और इस कविता को याद करके दोहराए। चलिए धन्यवाद। चलते हैं अपनी अगली कविता की ओर। तो प्यारे बच्चों, हमारी कविता का शीर्षक है छुट्टी के दिन। किस किस को पसंद है छुट्टी? भाई मुझे तो बहुत पसंद है। पूरा आराम करें, अच्छे से खाना खाएं, ना पढ़ाई करनी पड़े। तो चलिए आज हमारी कविता का शीर्षक भी यही है, छुट्टी के दिन। चलिए पढ़ेंगे मेरे साथ कविता। चलिए मेरे साथ दोहराइए। मेरी कविता का शीर्षक है छुट्टी के दिन।
छुट्टी का दिन आया है, सबके मन को भाया है। आज न पढ़ने जाएंगे, दिन भर धूम मचाएंगे। मैदान में खेलने जाएंगे, फिर घर पर खाना खाएंगे। चलिए एक बार और दोहराएंगे मेरे साथ। छुट्टी का दिन आया है, सबके मन को भाया है। आज न पढ़ने जाएंगे, दिन भर धूम मचाएंगे। मैदान में खेलने जाएंगे, फिर घर पर खाना खाएंगे। तो आपका भी छुट्टी का दिन है, आप भी खेलो पर हाँ पढ़ो जरूर। तो आप इस कविता को दोहराएंगे, याद करेंगे। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपनी अगली कविता की ओर। चलिए, हमने पेड़ों के बारे में कविता पढ़ी और आज हम उससे मिलता जुलता एक अभ्यास करेंगे। हमें कुछ पेड़ दिए गए हैं और हमें उनको उनकी पत्तियों से मिलाना है। चलिए देखते हैं कहाँ है इस पेड़ की पत्ती। इस पेड़ की पत्ती हम ढूंढते हैं। यहाँ है हमारे पेड़ की, यहाँ है हमारे पेड़ की पत्ती। चलिए इस वाले पेड़ की पत्ती कहाँ है? यहाँ है इस पेड़ की पत्ती। ये हमारा केले का पेड़ है, इसकी पत्ती यहाँ है और इस वाले पेड़ की पत्तियां यहाँ पे हैं। और देखिए इसकी पत्ती कहाँ है? इस वाले पेड़ की पत्ती यहाँ है। तो चलिए बच्चों, आप भी इस अभ्यास को अपनी पुस्तक में करिए, बहुत ही मजा आएगा। चलिए चलते हैं अपनी अगली कविता की ओर। तो चलिए बच्चों, आ जाते हैं अपनी अगली कविता पे। और क्या है हमारी कविता का शीर्षक? नीली नीली तितली। किसने देखी है तितलियां? सब ने देखी होंगी तितलियां, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी होती हैं तितलियां। तो आज हम भी पढ़ेंगे एक कविता तितली के ऊपर। चलिए शुरू करेंगे मेरे साथ आप। चलिए, मेरी कविता का शीर्षक है नीली नीली तितली। नीली नीली तितली आई, साथ में मीठा पानी लाई। प्यासी थी वह कई दिन की, पी गई सारा बगिया का पानी। उसकी यही कहानी थी, वह नीली तितली रानी थी। तो कौन आई थी? नीली तितली आई थी और सारी बगिया का पानी वो पी गई। तो जल्दी जाओ, आप भी देखो क्या आपकी बगिया में कोई तितली है। चलिए इस कविता को याद करेंगे, दोहराएंगे। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, आ जाते हैं हमारी अगली कविता पे, जिसका शीर्षक है बगिया बगिया। चलिए दोहराएंगे मेरे साथ, बगिया बगिया। मेरी कविता का शीर्षक है बगिया बगिया। हम सब दोस्त हैं प्यारे, संग संग खेले सारे के सारे। झगड़ा नहीं बस प्यार करें, मिलजुल कर हम काम करें। रंग बिरंगे फूल बने हम, खुशबू से महकाए गम। हम सब मिलकर गाएं गीत, दोस्ती का वो मीठा संगीत। तो यहाँ पे किसकी बगिया है? यहाँ प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों की बगिया है और वो सब मिलकर क्या करना चाहते हैं? वो लड़ना नहीं चाहते, वो प्यारे प्यारे गीत गाना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों, आप भी अपने दोस्तों को लेकर एक बगिया बनाओ और पर पहले इस कविता को याद करके दोहराओ। धन्यवाद। तो बच्चों, अभी हमने तितली वाली कविता पढ़ी और अब हम तितली में रंग भरेंगे। चलिए थोड़ा सा रंग मैं भरूंगी और बाकी रंग आप भरेंगे इस तितली में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारी अगली कविता का शीर्षक है नारियल। किस किस ने खाया है नारियल? किस किस को पसंद है नारियल? तो नारियल एक बहुत अच्छी चीज है, आप सब खाइए। और चलिए पढ़ते हैं अपनी कविता। मेरे साथ दोहराएंगे। मेरी कविता का शीर्षक है नारियल। कौन नारियल के पेड़ों पर जादू साकर जाता है? बंद कटोरी में मीठा जल चुपके से भर जाता है। फिर वह नारियल बाजारों में ठेले पे बिक जाता है। तो चलिए एक बार फिर दोहराएंगे इस कविता को। मेरी कविता का शीर्षक है नारियल। कौन नारियल के पेड़ों पर जादू साकर जाता है? बंद कटोरी में मीठा जल चुपके से भर जाता है। फिर वह नारियल बाजारों में ठेले पे बिक जाता है। तो सब जाएंगे और नारियल लेके उसमें से वो मीठा जल पिएंगे, जिसे हम बोलते हैं नारियल पानी। चलिए बच्चों, इस कविता को आप याद करेंगे, दोहराएंगे। धन्यवाद। बढ़ते हैं अपनी अगली कविता की ओर। तो बच्चों, हमारी कविता का शीर्षक है रस भरी जलेबी। कैसी होती है? गोल गोल होती है ना जलेबी, सबको पसंद होती है जलेबी, मुझे भी पसंद है। तो चलिए जलेबी के ऊपर हमारी कविता को आज हम पढ़ेंगे। चलिए दोहराएंगे कविता मेरे साथ। मेरी कविता का शीर्षक है रस भरी जलेबी। गोल गोल चक्कर पे चक्कर, शुरू कहाँ से हाय जलेबी। अंग अंग मीठा रस है, बन गई रस की खान जलेबी। गरम गरम खाकर तो देखो, मीठी मीठी भाई जलेबी। तो बहुत ही बाती है जब गरम गरम मीठी मीठी जलेबी हम खाते हैं, हमारे पापा लाते हैं हमारे लिए। तो चलिए आप भी मंगाएंगे अपने पापा से आज जलेबी और अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाएंगे। धन्यवाद।
तो चलते हैं हमारी अगली कविता की ओर। तो चलो बच्चों, हमारी कविता का शीर्षक है मोर। किस किसने देखा है मोर? बहुत ही सुंदर होता है मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और आज हम पढ़ेंगे मोर के बारे में अपनी कविता में। चलिए दोहराएंगे मेरे साथ इस कविता को। हमारी कविता का शीर्षक है मोर। नाच मोर का सबको भाता, जब वह पंखों को फैलाता। पीहू पीहू शोर मचाता, धूम धूम कर नाच दिखाता। रिम झिम पानी आता, जब वह अपना नाच दिखाता। तो जब मोर नाच दिखाता है तो पानी आता है। तो आप सब भी ढूंढिए, क्या पता आपको कहीं मोर दिख जाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता को आप याद करेंगे, दोहराएंगे। आते हैं हमारी दूसरी कविता की तरफ। छोटी सी मछली। क्या है हमारी कविता का शीर्षक? छोटी सी मछली। तो मछलियां बड़ी ही छोटी छोटी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, पर हम अपनी कविता में पढ़ेंगे छोटी सी मछली के बारे में। तो चलिए दोहराएंगे मेरे साथ इस कविता को। हमारी कविता का शीर्षक है छोटी सी मछली। मैं हूँ छोटी सी एक मछली, जल में रहती हर पल खिली। पंख नहीं फिर भी उड़ती, लहरों से कभी ना डरती। जान से बचकर निकलती हूँ, छुप छुप कर आगे चलती हूँ। मैं हूँ जल की रानी प्यारी, सपनों जैसी दुनिया हमारी। तो सपनों की दुनिया होती है, जल में रहती है मछली और बहुत ही प्यारी होती है। आप भी दोहराएं इस कविता को घर पे। चलिए चलते हैं हमारी अगली कविता की ओर। तो हमारी अगली कविता का शीर्षक है मेरी नानी। किस किस को प्यारी है नानी? बहुत ही प्यारी होती है नानी बच्चों, बहुत ही प्यार करती है। और सब बच्चे अपनी नानी के घर जाते हैं छुट्टियों में। तो चलिए पढ़ते हैं नानी के बारे में। चलिए दोहराएंगे कविता मेरे साथ। मेरी नानी। रिम झिम बरसा पानी, देखो आई मेरी नानी। दादुर मोर पपीहा बोले, मेरी नानी मस्ती में डोले। चारों ओर खूब बरसा पानी, देखो आई मेरी नानी। तो चलो बच्चों, आप भी बुला लो अपनी नानी को। और पर नानी को बुलाने से पहले इस कविता को याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारी अगली कविता की ओर। चलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं अपनी अगली कविता। और क्या है हमारी कविता का शीर्षक? हमारी कविता का शीर्षक है नन्ही चिड़िया। बहुत ही नन्ही नन्ही चिड़िया होती हैं, प्यारी प्यारी चिड़िया होती हैं। और हमारी कविता में भी एक चिड़िया है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए दोहराएंगे मेरे साथ। मेरी कविता का शीर्षक है नन्ही चिड़िया। नन्ही चिड़िया ची ची करती, फुर फुर कर वे उड़ती। फुदक फुदक कर गाना गाती, हाथ किसी के वे ना आती। रोज सवेरे मुझे जगाती, चोंच में दाना चुगती जाती। तिनका जोड़ जोड़ कर वे पेड़ पे अपना घर बनाती। तो क्या करती है चिड़िया? फुदकती है, फुरफुर करती है, रोज सवेरे हमें जगाती है चींची करके, और तिनका जोड़ के चिड़िया अपना घर बनाती है। तो बहुत ही प्यारी होती है चिड़िया। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी बहुत प्यारे हैं। आप इस कविता को याद करिए, दोहराइए और चलिए मेरे साथ चलिए अपनी अगली कविता की ओर। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाता है कहानी का समय। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी कहानी। और क्या है हमारी कहानी? लालची कुत्ता। तो एक बार एक कुत्ते को बहुत जोर से भूख लगी थी। क्या था? एक कुत्ता था, उसको बहुत भूख लगी थी। तभी उसे एक रोटी मिली। क्या मिला उसे? एक रोटी मिली। वह उस रोटी को अपने मुंह में दबाकर नदी की ओर चल दिया। कुत्ते ने रोटी अपने मुंह में दबाई और वो नदी की ओर चल दिया। नदी पर एक छोटा सा पुल था। क्या था नदी पे? एक छोटा सा पुल था, ताकि हम नदी को पार कर सके। जब कुत्ता नदी पार कर रहा था, तभी उसे अपनी पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझा और उसकी रोटी छीननी चाही। तो क्या हुआ? जब उसे अपनी परछाई दिखी तो उसे लगा कि ये कोई दूसरा कुत्ता है जिसके पास भी रोटी है। तो उसने सोचा कि मैं इसकी भी रोटी छीन लेता हूँ। रोटी छीनने के लिए उसने भौंकना शुरू कर दिया। उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसने भौंकना शुरू कर दिया तेज तेज। मुंह खोलते ही उसके मुंह की रोटी नदी में जल में गिरकर बह गई और लालची कुत्ता भूखा ही रह गया। और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला भौंकने के लिए, जो उसके मुंह में रोटी थी वो नदी में गिर गई और कुत्ता भूखा ही रह गया। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इसलिए कहा गया है कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच बहुत ही बुरी बला है। तो आप सब भी बिल्कुल लालच मत करिए। आपके पास जो है आप उसी में खुश रहिए। कभी भी किसी दूसरे का सामान छीनने की कोशिश मत करिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इस कहानी को पढ़िए, याद करिए। धन्यवाद। आभार।